हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ दमदम एयरपोर्ट के पास नौलता करके एक जगह पे, जो कि गेट नंबर 1 से बहुत पास में है। सो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर थे जो दमदम लोकेशन में फ्लैट ढूंढ रहे थे। सो आज मैं एक सेमी कॉम्प्लेक्स में आ गई हूँ जिसमें 3 टावर हैं बेसिकली, और G+5 का हर एक टावर है। सो आज हमें वीडियो पे हेल्प करेंगे कमलेंदु अंकल, ठीक है। सो आज इनसे लोकेशन के बारे में बिल्डिंग के बारे में सारा जो इन्फॉर्मेशन है इन्हीं से ले लेते हैं। उनको हिंदी नहीं आती है, सो ये बंगाली में ही बोलेंगे। सो मैं उसको कोशिश करूँगी आप लोग तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। सो कमलेंदु अंकल, वेलकम टू माई चैनल। ओके, सो सबसे मुझे पहले ये बता दीजिए कि ये लोकेशन क्या है एग्जैक्ट। 10 থেকে 12 মিনিট এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেট ভিআইপি মোড় আছে, আর 10-12 মিনিট ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন আছে যেখানে মেট্রো হচ্ছে। আমার রেল স্টেশন আছে দুর্গানগর স্টেশন, এখানে 10 মিনিট আছে, মানে মাঝখানটে আছে, যেদিকে খুশি সেদিকে মুভমেন্ট করছে। सो बेसिकली ये जगह कौन सी, इसको ये क्या নলতা বলতে হয়, নলতা বকুলতলা আছে। এটা মাঝামাঝি জায়গা আছে, সব ভালো লোকেশন আছে। अच्छा, और यहाँ आसपास रेलवे स्टेशन, मेट्रो? মেট্রো ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে মেট্রো হচ্ছে, আর এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেটে মেট্রো হচ্ছে, আর দমদম এই দুর্গানগর স্টেশন রেল স্টেশন আছে, আবার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন রেল স্টেশন আছে। এই দুটোর মাঝখানে আছে দুটো মেট্রো স্টেশন, দুটো রেল স্টেশন। ओके, सो मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, एयरपोर्ट एग्जैक्टली यहाँ से कितना दूर है? 10 থেকে 12 मिनट হবে मैक्सिमम। 10 से 12 मिनट, अच्छा। और बाई वॉकिंग डिस्टेंस, बाई वॉकिंग डिस्टेंस, तो बहुत पास में है। और यहाँ से लाइक अगर मार्केट वगैरह, लोकल मार्केट ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন আছে, দুর্গানগর স্টেশন আছে, এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেটের বাজার আছে, তিনটে বাজার নাম। अच्छा, और अगर मुझे मॉल वगैरह जाना हो? মল এখানে রিলায়েন্স ফ্রেশ আছে, 10 মিনিট লাগবে হেঁটে গেলে। আর প্যান্টালুন্স আছে গোড়াবাজারে, আর মোড় আছে গোড়াবাজারে। এই মানে ম্যাক্সিমাম 15 মিনিটের ডিস্টেন্স আছে। अच्छा, और बस स्टैंड? বাস স্ট্যান্ড ভিআইপি মোড় আছে, 10-12 মিনিট লাগে। अच्छा, और स्कूल, हॉस्पिटल? স্কুল এখানটায় 5টা স্কুল আছে, ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুল আছে, ঋষি অরবিন্দ মেমোরিয়াল স্কুল আছে, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট 10 মিনিটও লাগবে না, 6-7 মিনিট লাগবে। সেন্ট স্টিফেন স্কুল আছে, এরকম আছে, সেন্টার স্কুল আছে, অনেকগুলি স্কুল আছে। হসপিটাল মিউনিসিপ্যালিটি হসপিটাল গোড়াবাজার, স্পেশালাইজ হসপিটাল, এদিকে ফনিক্স আছে, এদিকে আইএলএস আছে। अच्छा, सो मतलब आपको ये सब कुछ 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है रेडियस? 3 किलोमीटर रेडियस होगा। सब कुछ है। हाँ, जब मैं आ रही थी तब भी मैंने देखा था वहाँ पे एयरपोर्ट, कैलकाटा इंग्लिश मीडियम एक स्कूल भी है। सो इट्स अ प्राइम लोकेशन। अच्छा, सो मुझे बता दीजिए इस प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट हैं, कौन कौन से फॉर्मेट में? 84 ফ্ল্যাট আছে, তার মধ্যে 25টা বিক্রি হয়ে গেছে, এখনও ওটা 60 আছে, আর সব ফ্লোরে অ্যাভেলেবেল আছে। 1 BHK, 2 BHK? 1 BHK আছে 650, আর 2 BHK 850, 900, 950। अच्छा, ओके, 3 वेरिएंट्स में। अच्छा, यहाँ पे पानी वगैरह जमता है? না, জল হয় না। এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেটে ঢোকার মুখটায় জল হয়, ভিআইপি মোড়ে থেকে। তারপরে এই লোকালিটিতে জল হয়, ওই ঢোকার মুখটা এয়ারপোর্ট 1 নম্বর গেটের সামনে জল হয়। अच्छा, अच्छा, सो अगर किसी को अगर लोन वगैरह लेना है तो क्या व्यवस्था है? এসবিআই হাউজিং এসবিআই লোন হয়েছে, ইউকো ব্যাঙ্ক লোন হয়েছে, আইডিবিআই হয়েছে, এলআইসি আছে, বরোদা ব্যাঙ্ক আছে, সব ন্যাশনালাইজ ব্যাঙ্কে আছে। अच्छा, ম্যাক্সিমামটা এসবিআই আর আইডিবিআই। और इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में है? সিইসি আছে, কোনো লোডশেডিং নাই, ভোল্টেজ ড্রপ নাই, এই জন্য কোনো অসুবিধা নেই। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी সিইসি सी सी ओके, ओके। और पानी की क्या व्यवस्था है? এই সাবমার্সিবল ওয়াটার আছে, সাবমার্সিবল ওয়াটার থেকে উপরে যায়, উপরে আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট আছে, প্ল্যান্ট থেকে জল চলে। अच्छा, और मेंटेनेंस कितना है? 1 টাকা 1.5 টাকা, 1 रुपये 1.5 टाका 1.5 টাকা করেই আছে। 1.5 रुपये करके है। अच्छा, और एमिनिटीज़ में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है मुझे सोसाइटी? রুফটপ গার্ডেন আছে, আর 24 আওয়ার সিকিউরিটি আছে, আর আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট আছে, আর এরকম আছে, আর কমিউনিটি হল আছে, এই কটাই আছে। सीसीटीवी कैमरा? সিসিটিভি ক্যামেরা, अच्छा, सिक्योरिटी भी है? लिफ्ट? লিফট আছে, पार्किंग? পার্কিং মানে বাচ্চাদের খেলার জায়গা এখনও নাই, করা হবে পাশে। এই জায়গাটা নেওয়ার কথা আছে। अच्छा, এই জায়গাটা বাচ্চাদের খেলার পার্কিং জায়গা, আর এমনি ওপেন পার্কিং আছে বাই এক্সট্রা। 4 व्हीलर के लिए कोई पार्किंग? হ্যাঁ, कितना चार्ज है? এই 7 লাখ।
7 lakhs फॉर 160 स्क्वायर फीट। 160 स्क्वायर फीट के लिए, लेकिन टू व्हीलर के लिए कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, और बिल्डिंग में प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा क्या यूज़ किया है? अंबुजा सीमेंट আছে, टाटा রড দেওয়া আছে। अच्छा, जब और फिटिंग ब्रांडेड फिटिंग ब्रांडेड फिटिंग्स है, ओके। और ये जो कॉमन एरिया है वहाँ पे क्या यूज़ किया गया, टाइल्स या फिर मार्बल? मार्बल और फ्लैट के अंदर? मार्बल फ्लैट के अंदर भी मार्बल? वाह, ये बहुत रेयर हो गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट में मार्बल मिलना, सो मार्बल मिलेगा। और लिफ्ट तो है ही, आपने बता दिया है। ओके फाइन। अगर जैसे किसी को अगर फ्लैट लेना है तो रेडी टू मूव है ना, मतलब जैसे रजिस्ट्री हो जाएगा वैसे चेकिंग कर सकता है। अच्छा, कमलेंदु अंकल मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि फ्लैट का फेसिंग किस साइड में है? मैक्सिमम ईस्ट फेसिंग आगे और अपना वेस्ट फेसिंग है। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा कमलेंदु अंकल मुझे ये बता दीजिए पर स्क्वायर फीट प्राइस कितना है? 3050 টাকা आगे पर स्क्वायर फीट रेट। 3050 रुपीज़? हाँ। अच्छा, और 82,000 एमिनिटीज चार्ज। अच्छा, 82,000 एमिनिटीज चार्जेस, ठीक है। और इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है? बाकी तो मेरा वो रजिस्ट्रेशन और 1% GST कॉमन है। तो ऑलमोस्ट मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले चुकी हूँ। सो अभी मैंने आपको बिल्डिंग भी दिखा दिया है। सो अभी चलिए अंदर चलते हैं और रूम के 1 BHK 2 BHK का लेआउट चेकआउट करते हैं। अंकल ने जैसे बताया 3 वेरिएंट्स में है, यानी 3 लेआउट में है, 1 BHK 2 BHK। सो मैं सारा तो नहीं कवर कर पाऊँगी, मैं एक आपको लेआउट दिखा दूँगी और बाकी मैं आपको वर्बली समझा दूँगी, ठीक है। सो आपको तीनों लेआउट अगर देखने हैं तो कमलेंदु अंकल का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से पुल आउट करके कमलेंदु अंकल से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और साइट विजिट कर लीजिएगा। सो चलिए अब चलते हैं और रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, मैं आज जिस प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए आई हूँ, आप देख लीजिए, ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 टावर है। ये एक टावर है, ये सामने में एक टावर है और ये एक पीछे में टावर है। सो बेसिकली ये G+5 के 3 टावर है। नीचे में आप जैसे देख रहे हैं कि ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग है, 4 व्हीलर ऑलरेडी रखे हुए हैं। सो ये नीचे में आपको कवर्ड पार्किंग का स्पेस दिया गया है। ओके, सो फ्रेंड, अभी मैं आपको 2 BHK का रूम टूर दे देती हूँ। सो जैसे कमलेंदु अंकल ने बताया था कि कॉमन एरियाज़ में मार्बल यूज़ किया गया है। सो आप देख रहे हैं कि 2.5 बाई 2 फुट का मार्बल यूज़ किया गया है। सामने में ही ये लिफ्ट का एरिया है जिस पे चैनल लगाया हुआ है, ठीक है। और ये इसी के बाजू में जो कमरा है ये 2 BHK है जिसको मैं अभी कवर करूँगी। ये 2 BHK का एंट्रेंस है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे वाटर लैमिनेट का एक आपको डोर दिया गया है, ठीक है। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 850 स्क्वायर फीट है। सो रूम पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा 2 बाई 2 का वेट्रीफाइड का टाइल्स यूज़ किया गया है। सो इसका टोटल सुपर बिल्ट एरिया 850 स्क्वायर फीट है, ठीक है। सामने में नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट साइड पे आपका ईस्ट डायरेक्शन है। सो सबसे पहले ही जो आपको दिखेगा वो है ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग स्पेस। सो दरवाजे से ही मैं आपको इस रूम का पूरे फ्लैट का एक ही लेआउट बता देती हूँ। सो एल शेप में आपको ये हॉल कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। राइट साइड में ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। फ्रंट में ही आपको एक ओपन किचन दिया गया है। उसके बाद इस तरफ में ये फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक और कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे कोई अटैच बाथरूम नहीं है। फर्स्ट बेडरूम से आपको एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगी और सामने में ये आपका सेकेंड बेडरूम है जिसमें कुछ भी अटैच बाथरूम या बैल्कनी नहीं है, ठीक है। और ये है आपका एंट्रेंस। सो चलिए अब मैं आपको 1 बाई 1 हर रूम का साइज बता देती हूँ। सो आप ये जो एल शेप में ये जो हॉल कम डाइनिंग का स्पेस देख रहे हैं, ये 14 बाई 16 का आपको एक ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। और इसी दरवाजे के बाजू में ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 6 बाई 4.5 है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं कि एकदम डेड एंड पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है। एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है। ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सेंटर में आपको शावर पॉइंट दिया गया है। टैप पॉइंट्स दिया गया है। नीचे में एक और
पॉइंट दिया गया है। सो अंदर में आपको इस बाथरूम में बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे बेसिन लगा सकते हैं। और एकदम कॉर्नर में आपको गीज़र पॉइंट दिया हुआ है। सो बेसिकली 6 बाई 4.5 का ये आपको एक फर्स्ट कॉमन बाथरूम दिया गया है, जिसके पास में ही आपको ये बेसिन दिया गया है। और यहाँ पे ये कॉमन स्विचेस है, ऊपर में आपको MCV का पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सो ये बेसिकली 16 बाई 14 का आपको ये L शेप में हॉल कम किचन दिया गया है। सो यहाँ पे आप अपना डाइनिंग रख सकते हैं, इस साइड में आप अपना एक सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं। उसी से अटैच आपको ये ओपन किचन दिया गया है। सो इस ओपन किचन का जो साइज़ है वो 7 बाई 5 है। सो 7 इसकी लंबाई है और उस एंड से इस एंड तक, इस आर्क तक 5 फीट इसकी चौड़ाई है। सो यहाँ पे आपको एक सिंक पॉइंट दिया गया है। राइट साइड में ही आपको एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है, ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सो बेसिकली ये 7 बाई 5 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। फिर उसके बाद आपके हॉलवे से ही अटैच लेफ्ट साइड में ये आपका फर्स्ट बेडरूम पड़ेगा, ठीक है। बेडरूम के जस्ट ऑपोजिट में आपको ये एक और कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे अटैच बाथरूम आपको नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट बेडरूम में जैसे ही आप घुसेंगे तो इसका सबसे पहले मैं साइज़ बता दूँ, 9 बाई 16 का ये आपको ह्यूज सा एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, ठीक है। सो ये 9 बाई 16 का आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, जहाँ पे एक बड़ी सी विंडो दी गई है, ठीक है। उसी से अटैच आपको एक ये बैल्कनी दिया गया है। सो इस बैल्कनी का जो साइज़ है ये 2.8 का आपको ये बैल्कनी दिया गया है। वहाँ पे आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है। सो आप वहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन का पॉइंट उसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विचेस वगैरह दिया गया है, ठीक है। सो बैल्कनी और बेडरूम से अटैच आपको एक स्लाइडिंग विंडो दिया गया है। सो ये आपका 9 बाई 16 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। कॉर्नर में आपको AC का पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस दिए हैं। सो फर्स्ट बेडरूम के जस्ट ऑपोजिट में ही आपको ये एक बाथरूम दिया गया है, ठीक है। ये भी एक कॉमन बाथरूम है। सो इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 3 बाई 5.5 है। एक छोटी सी विंडो दी गई है। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट दिया गया है, टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे बेसिन या फिर गीज़र का पॉइंट नहीं दिया गया है और एक सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है। सो ये 3.5 बाई 5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाजू में ही ये आपको सेकंड बेडरूम दिया गया है। 11 बाई 8 का ये आपको सेकंड बेडरूम दिया गया है, जहाँ पे 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग विंडोज़ है। AC का पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और ऊपर में ही आपको ये सेकंड बेडरूम से अटैच ही ऊपर में आपको एक लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो आप वहाँ पे सामान रख सकते हैं अपना कोई भी एक्स्ट्रा। और यहाँ पे मेन स्विचेस दिए गए हैं। सो बेसिकली ये जो सेकंड बेडरूम है इसका साइज़ है 11 बाई 8। सो 11 बाई 8 का ये आपको एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है। सो जैसे ही आप अपने बेडरूम से निकलते हैं, हॉलवे को क्रॉस करते हुए आप अपने हॉल कम डाइनिंग में आगे जाते हैं। सो यहाँ पे आपको एक TV का पॉइंट दिया गया है और ये आपको हॉल कम डाइनिंग से अटैच आपको ये विंडो भी दी गई है, ठीक है। सामने में एक बहुत अच्छा सा मंदिर भी दिख रहा है मुझे, बहुत प्यारा सा। सो ये आपका 2 BHK है, ठीक है। ये मेन डोर है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम, फ्रंट में सेकंड बेडरूम, बाजू में सेकंड कॉमन बाथरूम, ये ओपन किचन और ये हॉल कम लिविंग स्पेस और ये आपका कॉमन बाथरूम। सो चलिए अब कमलेंदु अंकल को बुला लेते हैं और इसका प्राइस वगैरह पूछ लेते हैं। अच्छा, सो कमलेंदु अंकल, इसका सुपर बिल्ड एरिया कितना है? 850 स्क्वायर फीट। सो पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस 3050 रुपीज़ है, ठीक है। सो टोटल इसका प्राइस कितना हुआ? 25,90,000। अच्छा, सो 25,90,000 के करीब इस फ्लैट का प्राइस है, ठीक है। सो अगर मेरा कोई चैनल देख के आता है सो कुछ बार्गेनिंग हो जाएगा? ओके फाइन। ओके, सो अंकल ने बता दिया बार्गेनिंग हो जाएगा। सो चलिए अब 1 BHK का रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। लेट्स गो।
सो ये आपका लिफ्ट एरिया है। लिफ्ट के पास से ही जो पैसेज चला जा रहा है उसके लेफ़्ट में जो एक 1 BHK है, मैं आज वो कवर करूँगी। सो आप देख लीजिए कि ये चैनल वाला लिफ्ट है। नीचे आपको मार्बल की फिनिशिंग दी गई है, ठीक है। और ये कमरे पे जैसे ही आप घुसेंगे तो आपको दिखेगा कि वेट्रीफाइड का टाइल यूज़ किया गया है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सामने में ये आपका साउथ फेस है, यानी कि आप जब कमरे में घुसेंगे तो आपको साउथ फेसिंग का कमरा मिलेगा, ठीक है। सो यहीं से मैं आपको एक छोटा सा लेआउट दिखा देती हूँ। ये हॉल कम डाइनिंग स्पेस है, उसी से अटैच आपको एक बैल्कनी दिया गया है। चूँकि ये 1 BHK है तो सिर्फ एक सिंगल रूम है, वहाँ पे बेडरूम है, एक सिंगल आपको बाथरूम दिया गया है, ऊपर में लॉफ्ट का एरिया दिया गया है, वो किचन का स्पेस है, इसे आप डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। और ये आपका मेन गेट एंट्रेंस है, ठीक है। सो चलिए अभी मैं आपको 1 बाय 1 सब कमरों का साइज़ बता देती हूँ। सो ये जो आपका हॉल कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है वो 14 बाई 10 है, यानी कि उस एंड से लेके इस एंड तक इसका 14 है और इसका जो ब्रॉडनेस है वो 10 फुट दिया गया है। हॉल ही पे ही आपको एक ये टीवी का पॉइंट दिया गया है, इससे अटैच आपको एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है और यहाँ इसी हॉल से अटैच आपको एक ये बैल्कनी दिया गया है। सो इस बैल्कनी का जो साइज़ है वो 10 बाई 2.5 है, ठीक है। सो ये 10 बाई 2.5 का आपको एक बैल्कनी दिया गया है। इससे आप इसी पे आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है। सो आप वापस अपने हॉल पे आ गए। हॉल से फिर आप जैसे ये आपका ये हॉल के बाजू में ही आप छोटा सा ये जो स्पेस देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 बाई 8 का जो ये स्पेस देख रहे हैं, इसको आप अपना डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। किचन के पास ही में ही आपको एक बेसिन दिया गया है, ठीक है। और किचन का जो साइज़ है वो 6 बाई 4 का आपको ये किचन दिया गया है। सो किचन का जो फेस है वो एग्जैक्टली वेस्ट फेस में है, ठीक है। कॉर्नर में आपको आरओ का पॉइंट दिया गया है, एक मीडियम साइज़ का आपको सिंक दिया गया है, नीचे में एक टैप पॉइंट, ऊपर में एक टैप पॉइंट दिया गया है, एक मीडियम साइज़ का आपको विंडो दिया गया है, ऊपर चिमनी का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, ग्रेनाइट का एक स्लैब बैठाया गया है और किचन से ही अटैच आपको ये एक बेसिन दिया गया है, बाजू में एक और पॉइंट दिया गया है। सो किचन के बाजू में ही आपको ये सिंगल कॉमन टॉयलेट दिया गया है, सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है, ऊपर में आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो ये जो बाथरूम है इसका साइज़ 4 बाई 6 है। डेड एंड पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, एक छोटा सा विंडो दिया गया है, ऊपर एग्जॉस्ट के लिए एक पॉइंट दिया गया है, वहाँ पे गीज़र पॉइंट दिया गया है, एक शावर पॉइंट दिया गया है सेंटर में और टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है, तो आप चाहे तो अपना बेसिन लगा सकते हैं। यूजुअली जो बाथरूम में ना 6 फुट तक टाइल्स लगाए जाते हैं, बट यहाँ पे जैसा कि मैं देख रही हूँ कि 7 फीट तक टाइल्स लगाए गए हैं। तो ये आपका 6 बाई 4 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसी के बाजू में एक ये सिंगल बेडरूम दिया गया है। सो सिंगल बेडरूम का जो फेस है वो सामने की तरफ वो साउथ साइड है, ठीक है। सो ये जो सिंगल बेडरूम है इसका जो साइज़ है 8.5 बाई 9 का आपको ये सिंगल बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट भी दिया गया है। यहाँ पे 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग विंडोज़ दिए गए हैं। दरवाजे के बाजू में ही मेन स्विचेस दिए गए हैं, ठीक है। सो ये आपका साउथ है। सो बेसिकली ये जो कमरा है इसका साइज़ 8.5 बाई 9 का आपको ये सिंगल बेडरूम दिया गया है, ठीक है। सो बेडरूम से जैसे ही आप निकलते हैं वापस आप अपने किचन के सामने चले आते हैं एंड दिस इज़ योर हॉल कम डाइनिंग स्पेस। सो 1 BHK के हिसाब से इट्स अ ह्यूज स्पेस। इसका टोटल बिल्डअप एरिया 650 स्क्वायर फीट है। सो चलिए प्राइसिंग के लिए हम कमलेंदु अंकल को बुला लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 BHK का रूम टूर दे दिया है। सो अब कमलेंदु अंकल से पूछ लेती हूँ कि इसका सुपर बिल्ड एरिया कितना है और प्राइस कितना है। ये 650 स्क्वायर फीट आधे 3050 টাকা দিতে হবে, 82,000 MAT चार्ज আছে, टोटल 19,82,000 अच्छा, सो 19,82,000 यानी कि 19,82,000
82,000 के करीब इंक्लूडिंग आपका एमिनिटीज चार्ज पड़ेगा, ठीक है। सो 650 स्क्वायर फीट इंटू 3,050 रुपीज़ के हिसाब से ऑलमोस्ट एंड एमिनिटीज चार्ज मिलाकर आपको 19,82,000 के आसपास पड़ेगा। सो पहले तो अंकल अगर मेरा कोई चैनल लेके आ गया है तो ओके, सो अंकल पहले से ही बोल रहे हैं कि नेगोशिएशन हो जाएगा। ओके, सो अभी फिलहाल टाइम है कंटिन्यू अंकल को बाय बोलने का, ठीक है। सो अगर अंकल के पास कोई और अपडेटेड फ्लैट्स आते हैं या प्रोजेक्ट आते हैं तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, सो मैं भी आपको अपडेट करूंगी। और अगर आप लोग के पास कोई खुद का प्रोजेक्ट है या कोई आपका खुद का फ्लैट हो या स्टैंड अलोन बिल्डिंग हो, सो अगर आपको लगता है कि मैं आके वहाँ पे शूट करूँ, सो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।